Hello everyone, welcome to Suresh Agarwal's Reasoning Mantra. In today's video, we are going to discuss about blood relations yet another time, and this forms a verbal reasoning section of your reasoning paper. But the type of questions that we are going to discuss in this particular video will be different from what we have discussed in the previous two videos. तो आज हम questions जरूर blood relations पर लेने जा रहे हैं, but जो क्वेश्चंस आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे वो पिछली वीडियो से थोड़े डिफरेंट होंगे. बेसिकली आज के वीडियो के जो क्वेश्चंस हैं, इन क्वेश्चंस में आपको कुछ इंफॉर्मेशन दी जाएगी. लाइक यू कैन हैव अ लुक ऑन व्हाट टाइप ऑफ इंफॉर्मेशन विल बी प्रोवाइडेड टू यू ऑन द स्क्रीन. तो कुछ इंफॉर्मेशन आपको दी जाएगी और इस इंफॉर्मेशन के बेसिस पर आपने कुछ क्वेश्चंस के यहाँ पर आंसर देने हैं. तो देखिए, जैसे ये इन्फॉर्मेशन यहाँ पर आपको दी गई है कि एक फैमिली है जिसमें 6 मेंबर्स हैं, P, Q, R, X, Y and Z. Out of which Q is the son of R, but R is not the mother of Q. P and R are a married couple. Y is the brother of R, X is the daughter of P, and Z is the brother of P. Now, based on this information, you have to answer these questions. Like, who is the brother-in-law of R? इसके options आपको दिए जाएंगे. तो सबसे पहले हमने क्या करना है इन questions में, हमने बनाना है एक flow chart. तो चलिए देखते हैं फ्लो चार्ट कैसे बनेगा. शुरू करते हैं. Q is the son of R. तो सबसे पहले हमने बताना है कि जो Q है वो R का सन है. तो because Q is the son, he is a male, we put the person in a box. तो Q को हमने बॉक्स में क्यों डाला? क्योंकि Q एक मेल है, राइट? बट R is not the mother of Q. Obviously जब R मदर नहीं है तो R क्या होंगे? फादर होंगे. तो फादर है, that is why we are going to put a box here also, because R again is a male person. So wherever we have a male person we use a box, and wherever we have a female person we use a circle. P and R are a married couple. यानी कि जो P है उनकी मैरिज किससे हुई है? उनकी मैरिज हुई है R से. तो अब if R is a male, obviously P has to be the female. तो P कौन होगी? क्योंकि मदर हो गई. ठीक है. अब इसके बाद क्या दिया है? Y is the brother of R. R के एक ब्रदर हैं जिनका नाम है Y. अब Y भी मेल है because he is a brother. Again we use a box here. And X is the daughter of P. तो P की एक डॉटर भी है जिसका है नाम X. तो X क्योंकि फीमेल है, again we are using a circle here. अब P and R are a married couple. So obviously अगर उनके बच्चे एक X है और एक Q है तो ये दोनों आपस में क्या हो गए? ये दोनों आपस में हो गए भाई बहन, है ना? Brother and sister. So where Q is the brother and X is the sister. Now the question asked here is that who is the brother-in-law of R? R के brother-in-law कौन हुए? बताइए. I think I missed out on the question. Z is the brother of P. यहाँ पर Z भी है एक जो कि P के ब्रदर हैं. ये हमने मिस आउट कर दिया था. तो अब इस इंफॉर्मेशन के बेसिस पे हमने अपना आंसर चूज करना है. और क्वेश्चन क्या कहता है? क्वेश्चन हमसे पूछता है कि R के ब्रदर इन लॉ कौन है. R ये हैं, तो R के ब्रदर इन लॉ कौन हो गए? उनकी वाइफ का जो ब्रदर होगा वही ब्रदर इन लॉ होगा. तो Z is the answer here. So the first question, to the first question the answer will be Z. Now let us look at the second question. How many female members are there in the family? तो आपने इसमें बहुत ही आसान तरीके से सिर्फ सर्कल्स को काउंट कर लेना है, क्योंकि हर सर्कल क्या रिप्रेजेंट करता है? फीमेल. तो एक आप देख रहे हैं P सर्कल में है और एक आप देख रहे हैं X सर्कल में है. ऑप्शंस देखिए क्या है? 1, 2, 3 and 4. Which one option will you choose? It will be option B, that is 2, because we have 2 circles in this family. That means 2 female members. अगर ऐसे ही आपसे पूछा जाए how many male members are there, what will you mark? You will mark 4 because you can see 4 squares here. The third question, which of these is a pair of brothers? अब देखिए दो brothers यानी कि दो बॉक्स साथ में जुड़े हुए without double headed arrows, R and Y, है ना? देखिए ऑप्शंस क्या है? ये है हमारी ऑप्शंस. तो इसमें हम किसके साथ जाएंगे? हम जाएंगे ऑप्शन डी के साथ, दैट इज R and Y. That means R and Y are a pair of brothers in this particular family या in this particular information. So I hope this question is clear to you. Let us take up one more question to understand this even in a better way. थोड़ा और अच्छे से समझने के लिए चलिए एक क्वेश्चन और यहाँ पर हम डिस्कस करते हैं. यहाँ पर मैंने पूरा क्वेश्चन आपको एक साथ दे दिया. सबसे पहले हम क्या करेंगे? हम फ्लो चार्ट बनाएंगे. देखिए T is the sister of D. यहाँ नीचे बना लेते हैं फ्लो चार्ट. T सिस्टर है तो T को हम क्या करेंगे? हम डालेंगे T को सर्कल में. ठीक है ना? T किसके सिस्टर है? D की सिस्टर है.
तो एक सिंगल लाइन लगाएंगे डी के साथ। अभी डी का हमें जेंडर नहीं मालूम है, ठीक है। डी इज मैरिड टू पी। अब डी का हस्बैंड या वाइफ हमें नहीं मालूम है, वो है पी। आगे पढ़ेंगे, पी इज द सन ऑफ एम। अब पी सन है तो पी क्या हो गया, पी हो गया मेल, because he is the son. Obviously a son will be male, so that means if he is married to D, what will be D? D will be the daughter, she will be a female, ठीक है ना। अब T is the mother of J। T is the mother of J, यानी कि जो T है उनका एक बच्चा है जिसका नाम है J, बट हमें अभी यहाँ पर जेंडर मालूम नहीं है J का, कि J का जेंडर क्या होगा। Y is the father of U। तो यहाँ पर एक Y भी है जो कि फादर हैं किसके, यू के। हमें यू का जेंडर भी नहीं अभी मालूम है। Y has only one son and only one daughter। तो यहां पर क्या बोला गया कि हाँ, Y का एक सन है और एक डॉटर है। U is the daughter of T, यानी कि U क्या डॉटर है तो फीमेल हो गई, किसकी डॉटर है, T की। अब T और Y दोनों की डॉटर है, दैट मीन्स क्या है, ये एक मैरिड कपल हो गया, राइट। एंड हमें ये भी बताया गया है कि जो यू है वाई है उनका एक बेटा है और एक बेटी है। ही हैज अ सन एंड अ डॉटर। देखिए वाई हैज ओनली वन सन एंड वन डॉटर, दैट मीन्स अगर डॉटर यू है तो सन कौन हुआ, जे हो गया सन, जे विल बी द सन। क्यू इज द सन ऑफ डी, और यहाँ पर जो डी है उनका भी एक सन है एंड हिज सन्स नेम इज क्यू। अब क्योंकि ये सन है, अगेन वी विल बी यूजिंग अ बॉक्स ओवर हियर। तो ये हो गया हमारा फ्लो चार्ट कंप्लीट। अब इस फ्लो चार्ट को देखते हुए हमने आंसर करने हैं जो अगले 3 क्वेश्चंस हमसे पूछे गए हैं। वी हैव बीन आस्क्ड 3 क्वेश्चंस हियर एंड बेस्ड ऑन दिस फ्लो चार्ट वी आर एक्सपेक्टेड टू आंसर दिस 3 क्वेश्चंस। द फर्स्ट वन इज हाउ इज P रिलेटेड टू T। देखिए अब P क्या है, यहाँ पर P और T में क्या रिलेशन है। देखिए T और Y क्या है, हस्बैंड वाइफ है। उसी तरीके से P और D भी क्या है, हस्बैंड वाइफ है। लेकिन T और D आपस में क्या है, सिस्टर्स हैं दोनों। देखिए दोनों सर्कल में हैं, ठीक है ना। तो इसका मतलब क्या हुआ, जो P और T है उनमें क्या रिलेशन हुआ, ब्रदर इन लॉ का, है ना। P कौन है, P T का ब्रदर इन लॉ, यानी कि उसकी सिस्टर का हस्बैंड। D is the sister of T and P is the husband of D, that means P is the husband of T's sister, so we'll mark brother-in-law for the first question. What is the second question? How is J related to D? देखिए अब J ये है और D ये है, क्या रिलेशन हुआ, T और D सिस्टर्स है ना, तो D की सिस्टर का बेटा है तो कौन हुआ, नेफ्यू। सो विल गो विद ऑप्शन D हियर। सिस्टर का बेटा कौन होता है, नेफ्यू होता है ना। देन द थर्ड क्वेश्चन इज हाउ इज Q रिलेटेड टू M। अभी यहाँ पर हमने बताना है कि Q और M का क्या रिलेशन है। P इज द सन ऑफ M। देखिए P इज द सन ऑफ M, तो यानी कि ये हमने थोड़ा सा पार्ट यहाँ मिस आउट कर दिया। P किसका बेटा है, M का बेटा है। यहाँ पर M भी है। तो अब आपसे पूछा गया, अब M का जेंडर हमें नहीं दिया गया यहाँ पर, तो इसके बिना भी हम मैनेज कर सकते हैं। वी डोंट नो वेदर M इज अ मेल और अ फीमेल, बट येस वी नो दैट M इज द फादर और मदर ऑफ P। और आपसे रिलेशन क्या पूछा गया है कि Q का M से क्या रिलेशन है। तो देखिए सेकेंड जनरेशन आ रही है, P के बाद जो M है उनका बेटा या बेटी जो भी है उसकी थर्ड जनरेशन आ रही है। तो क्या हुआ, Q क्योंकि मेल है तो ही विल बी द ग्रैंडसन, है ना। तो दिस इज हाउ यू आर एक्सपेक्टेड टू आंसर सच टाइप ऑफ क्वेश्चंस एंड आई होप आफ्टर सीइंग दिस वीडियो आप ऐसे और बहुत सारे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस खुद से करेंगे और आप उसको बहुत अच्छे से फ्लो चार्ट बना के सॉल्व कर पाएंगे। यहाँ पर मैंने बहुत डिटेल में एक्सप्लेन किया है, इसीलिए हमें इतना टाइम लगा है। लेकिन एग्जाम में अगर आपको अच्छे से फ्लो चार्ट बनाना आता है, दिस विल हार्डली टेक अ मिनट। यू क्विकली हैव टू मेक अ फ्लो चार्ट एंड देन जस्ट फटाफट से आंसर्स को आप टिक करते जाएंगे। और I am pretty sure that you all will be able to solve many more questions like this after seeing this video. So don't forget to share this video with your friends so that they can also benefit, ताकि उनका भी फायदा हो। लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को और शेयर कीजिए इसको अपने फ्रेंड्स के साथ, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग हमारी फैमिली के साथ जुड़ें और बेनिफिट करें। थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग मी एंड सी यू विद अनदर वीडियो शॉर्टली।